Hello students, how are you all? We are learning the chapter number 2 of class 10 science, that is acids, bases and salts. So what we have learned, let us revise quickly that we have completed the definition of acid and base. We have learnt about the physical properties and chemical properties of acid and base. Physical properties means they are sour in taste, etc. But the chemical properties we have studied in detail, and that is the reaction of acid and base with different types of compound. That is reaction of acid with metal, reaction of acid with metal oxide, reaction of acid with metal carbonate, react of acid with base. Similarly, reactions of base with acid, reaction of base with metal, reaction of base with metal oxide, reaction of base with non-metal oxides also. So there are quite few properties of acids and base. Then we have learnt about different types of salts. We have learnt about strong acid, strong base. We have learnt about strong acid, strong base, weak acid, weak base, reaction of acid and base, neutralization reaction which forms a neutral compound such as salt and water. By the reaction of different types of acid, that is strong acid and weak acid, strong base and weak base, we have different types of salt, that is acidic salts, basic salts and neutral salts. Clear? After that we have learned the topic in detail about pH. How to find the pH of any solution. pH, let us revise quickly just in a minute. What do you mean by pH? pH scale is 0 to 14. At exactly 7, if the solution shows the pH of 7, then the solution is neutral. If pH is less than 7, then the solution is acidic. If the solution is greater than 7, then the solution is basic. The lesser the pH, jitna kam hoga, solution will be more acidic. The higher the pH, the solution will be more basic. Solution 9 है, अगर किसी solution है जिसका pH है 9 और अगर कोई solution है जिसका pH है 11, then both of them are greater than 7, so both of them are basic solution. But the solution having pH 11 is more basic than the solution having pH 9. Similarly, if there is a solution whose pH is 4 and there is a solution whose pH is 6, then both of them have the pH less than 7, then both of them are acidic. But the solution having 4 is more acidic than the solution having pH 6. Clear? So that is the difference of pH. pH 0 to 14 होता है, and that is the limitation also of the pH, that it is only up to the 14 और 14 तक ही होता है. That is also the limitation of pH. But how can we measure the pH of any solution? How can we measure the pH of any solution? Then we have 2 to 3, 4 things that by which we can measure the pH of any solution. The first one is litmus paper. Litmus paper. The second one is pH paper. Third one is universal indicator. And the fourth one, but which is not given in the book, that is pH meter. So here we have 4 things by using which we can measure the pH of different types of solutions. First is litmus paper. There are 2 types of litmus paper that we know quite well. There are red and blue litmus paper. There are red and blue litmus paper. If any solution turns red litmus to blue, then it is basic in nature. If any solution turns blue litmus to red, then it is acidic in nature. If there is no possibility, if there is a solution which do not turns red to blue, not turns blue to red, then it will be neutral. So there are different types of solutions and here I can measure. लेकिन बात तो ये है कि हमें pH चाहिए, not the solution is acidic or basic. I want to measure the pH. लेकिन इसमें एक और छोटा सा ट्विस्ट है, हर बार सॉल्यूशन नहीं होता है. कभी कभार HCl फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो गैसियस फॉर्म में होता है. कुछ ऑक्साइड से जैसे सोडियम ऑक्साइड सॉलिड होते हैं.
तो कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो गैसियस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। फॉर मेजरिंग द गैसियस एंड सॉलिड कंपाउंड्स वी नीड वेट लिटमस पेपर, वी नीड वेट लिटमस पेपर, वी नीड वेट लिटमस पेपर। Clear? Because when Na2O reacts with water, it forms NaOH. So this will show basic nature. This will show basic nature. There are some gases, for example, sulfur dioxide and sulfur trioxide, when reacts with water, they form sulfuric acid H2SO4. So here they will show acidic nature. Here they will show acidic nature. So there are many compounds which are not always in the solution form, they are either in the gaseous form, they are either in the solid form. So detecting the acidic or basic nature of gaseous and solid compounds, we need wet litmus paper, we need wet litmus paper, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, है ना। तो पानी ले लो, पानी में डुबो दो और फिर उसको यूज करो। इफ यू आर मेजरिंग द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन तो ड्राई होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ड्राई लिटमस पेपर होना चाहिए। लेकिन अगर गैसियस और सॉलिड कंपाउंड है तो लिटमस पेपर वेट होना चाहिए, देन एंड देन इट विल करेक्टली शो द रिजल्ट, देन एंड देन इट विल करेक्टली शो द रिजल्ट। क्लियर? तो इतना बेटा हमें ध्यान में रहना चाहिए। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, लिटमस पेपर हो गया। बट हमें जो बात थी वो अभी की अभी वहीं की वहीं है। हाउ कैन वी नो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? द इफ अगर रेड लिटमस ब्लू टर्न होता है देन इट इज पीएच ग्रेटर देन 7। इफ ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड देन द पीएच इज लेस देन 7। अगर न्यूट्रल है देन इट विल बी इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम इतना पता लगा सकते हैं दैट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 7 और द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7। बट वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बाय लिटमस पेपर, सो वी आर यूजिंग पीएच पेपर। पीएच पेपर जो होता है ना थोड़ा सा पेल येलो कलर होता है, एकदम लाइट क्रीम येलोइश कलर होता है। क्लियर? कैसा होता है? येलोइश कलर होता है, पेल येलो यानी लाइट एकदम क्रीमिश येलो कलर टाइप का पीएच पेपर होता है, डार्क। क्लियर? तो डार्क नहीं, सॉरी, लाइट येलोइश कलर का पेपर होता है लेकिन थोड़ा सा थिक पेपर होता है। क्लियर? एकदम क्रीमिश कलर, सो दैट इज ए येलोइश कलर का पीएच पेपर होता है। और अगर पीएच पेपर हम कोई भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो पीएच पेपर का कलर चेंज होता है, पीएच पेपर का कलर चेंज होता है। एंड व्हाट इज द चेंज इन द पीएच पेपर? व्हाट इज द कलर ऑफ द पीएच पेपर आफ्टर डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन? वी कैन नो द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। इफ द पीएच पेपर टर्न्स टू द पिंक, इफ द पीएच पेपर टर्न्स टू द पिंक, इफ द पीएच पेपर टर्न्स टू द ग्रीन, if the pH paper turns to the blue, if it is pink then the pH is equals to 2, if it is green then the pH is equals to 7, if it is blue then the pH is equals to 11. क्लियर? सी, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 3 कलर मिलेंगे, देयर कैन बी मेनी मोर कलर्स, देयर कैन बी मेनी मोर कलर्स, कि बहुत ही अलग अलग तरीके के आपको कलर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे पिंक मिला, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, कुछ भी मिल सकता है। तो हमें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं यूं आपको याद रखवा दूंगा, लेकिन पहले ये 3 याद रख लो। पिंक है तो pH 2 होना चाहिए, ग्रीन, ग्रीन इज द न्यूट्रल कलर तो ऑब्वियसली 7, और ब्लू है तो 11। क्लियर? नाउ वी हैव टू रिमेंबर विबग्योर। आपको क्या याद करना है बेटा? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू है ना, उसे हम डार्क कलर्स कहते हैं। दे आर नोन एज द डार्क कलर्स बिकॉज दे आर द शेड्स ऑफ ब्लैक, क्यों ब्लैक की तरफ मूव हो रहे हैं, सो दे आर नोन एज द डार्क कलर्स। रेड, ऑरेंज, येलो, दे आर नोन एज द ब्राइट कलर्स, दे आर दी ब्राइट कलर्स। वो ब्राइट कलर्स है बेटा, क्या बोले जाते हैं उसे कहते हैं ब्राइट कलर्स है, दे आर द कलरफुल। वो पी के देखा हो तो पता होगा, येलो, दूर से फोकस मारे, सो दैट इज येलो, सो दे आर द ब्राइट कलर्स, एंड ब्लू, इंडिगो, वायलेट आर द डार्क कलर्स, एंड ग्रीन एज वेल एज इज द कलर फॉर द न्यूट्रल थिंग। सो यहां पे आपको याद रखना है कि अगर वो ग्रीन है ना तो पीएच कितना होगा? 7। अगर ब्लू, इंडिगो, वायलेट है, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो ये क्या दिखाता है? बेसिक सॉल्यूशन। रेड, ऑरेंज, येलो क्या दिखाता है?
एसिडिक सॉल्यूशन। सी सो पिंक कहां पे आएगा, रेड ऑरेंज की तरफ जाएंगे तो हमें पिंक मिलेगा। सो यहां पे आप रखो कि यहां पे ग्रीन है तो पीएच कितना होगा 7, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ। ब्लू, इंडिगो, वायलेट तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। वायलेट यानी हाईली एसिडिक, रेड यानी हाईली बेसिक, तो पीएच होगा बहुत ही लो, लेस देन 2। क्लियर ना। ऑरेंज थोड़ा ज्यादा पीएच, येलो थोड़ा और ज्यादा पीएच होगा, ग्रीन तो पीएच 7 थोड़ा और ज्यादा, ब्लू थोड़ा और ज्यादा, इंडिगो थोड़ा और ज्यादा पीएच इंक्रीज होता जाएगा अप टू द वायलेट। तो इस हिसाब से द कलर्स ऑफ द रेनबो इंडिकेट्स द पीएच पेपर। ऐसे हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जब भी हम पीएच पेपर का कोई पैकेट खरीदते हैं बेटा, then on that packet there will be a strip of color। strip कैसा होगा, वो फेयर एंड लवली में आता है ना, वो शेड देखने के लिए कि देखो 7 दिन में आपका शेड ये चेंज हो जाएगा, उसी तरीके का एक स्ट्रिप होगा in which different types of colors are drawn, in which different colors are fulfilled and it shows that if the pH paper changes to this color then the pH of the solution। तो स्ट्रिप पे ही सारी चीजें लिखी होगी, because there are different factories, different companies which are producing the pH paper and there can be a change in the color of the pH paper depending on the companies on which it is produced। कौन बनाता है accordingly वो चेंज आ सकता है। क्लियर। तो पीएच पेपर इस तरीके से होता है। आफ्टर पीएच पेपर वी हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो दिस इज ए पेपर एंड दिस इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, इज ए सॉल्यूशन, इट इज ए सॉल्यूशन, सो इट इज लिक्विड। तो बोतल में आता है, वो पैकेट में आता है, इट इज अ पेपर, नाउ इट इज अ सॉल्यूशन। बोतल आएगी और उसी बोतल के ऊपर भी अगेन एक स्ट्रिप होगी which shows the different colors and each color represents the pH of the solution, somewhat pH of the solution। उसके लिए भी आपको सेम याद रखना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो या पीएच पेपर हो, पिंक देन 2, ग्रीन देन 7, ब्लू देन 11। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन हमें फिलहाल के लिए क्या याद रखना है, पिंक 2, ग्रीन 7, ब्लू 11, और उसी हिसाब से तुक्का लगाना है। क्लियर। आपको अगर पूछा जाता है इफ द पीएच पेपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड द पीएच पेपर टर्न्स टू द वायलेट कलर, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आपके पास 4 ऑप्शन है, 2, 7, 11, 14। तो आपको पता है कि भाई हमने ब्लू पे तो 11 याद रखा है, तो ब्लू टू इंडिगो, इंडिगो टू वायलेट, तो ज्यादा ही होना चाहिए, वो ज्यादा ही होना चाहिए। सो ऑब्वियसली इट विल 14, इट विल बी ग्रेटर देन 11। उस हिसाब से आप तुक्का लगा सकते हो। आपको तो एलिमिनेट ही करना है, तुक्के ही लगाने हैं, बट लॉजिकल आपको एलिमिनेशन करना है। सो ये ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जय माता जी, ऐसा नहीं करना है, बट देयर शुड बी लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस। सी तो यहाँ पे ब्लू है, अगर एक ऑप्शन 11 से ज्यादा है देन यू विल ऑब्वियसली टेक दैट वायलेट फॉर दैट ग्रेटर ऑप्शन। सिमिलरली अगर आपको pH 2 है, रेड कलर है, तो उसका pH क्या होगा, लेस देन 2 हो जाएगा। क्लियर। ऑरेंज एंड येलो का क्या होगा, 2 और 7 के बीच में होगा, ग्रीन का 7। सो देयर इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके ऊपर भी स्ट्रिप होगी, पीएच पेपर के ऊपर भी स्ट्रिप होगी। यूनिवर्सल पीएच इज अ पेपर but universal indicator is a solution, so you have to drop that few drops of universal indicator in the solution for which you are measuring the pH। आपको जिस भी solution में आपको pH measure करना है उसमें few drops of universal indicator add करें। Now what is the color change of that solution? Accordingly we can say that the pH of the solution is what according to the color that is obtained from the solution। कि अगर pink मिल रहा है तो 2, green मिल रहा है तो 7, blue मिल रहा है तो 11, and after that you are remembering the Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, the colors of the spectrum obtained by the dispersion of white light in chapter number 11 blah 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 blah। Clear। तो ये चीज हम याद रखेंगे। तो विबग्योर अगर आपको याद रहता है बेटा, तो उस हिसाब से आप कलर चेंज याद कर सकते हो। क्लियर। तो अभी आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन से कलर में क्या होगा, एसिडिक कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा। ब्राइटर कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो आर फॉर एसिडिक, डार्कर कलर्स ब्लू, इंडिगो, वायलेट आर फॉर दी बेसिक, एंड ग्रीन इंडिकेट्स द न्यूट्रल वन। इतना आपको याद रखना है। क्लियर। सी अभी बहुत ही बढ़िया एक चीज है, लिटमस पेपर तो बकवास था हमारे लिए कि ग्रेटर देन लेस देन 7 कर रहा है। यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही है, एसिडिक, बेसिक। अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर यूज किया एंड इट शोज पिंक कलर एंड यू से दैट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 2, क्योंकि अभी आपको इतना तो याद होना चाहिए। क्लियर।
लेकिन लड़कों को साइड में रखते हैं, मुझे भी साइड में लगते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर पूछा जाए कौन सा पिंक, देन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पिंक, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, मजेंटा पिंक, पीच पिंक, बेबी पिंक, फलाना पिंक, डिमका पिंक, पिंक पिंक पिंक, बहुत सारे पिंक होते हैं। क्लियर आया समझ में? मुझे कैसे पता, मैं तो लड़की नहीं हूँ लेकिन शादी हुई है ना, तो नेल पॉलिश के बहुत सारे शेड्स आते हैं, वो मुझे पता है, लेने जाता हूँ मैं कभी कभार। सो दैट इज पिंक। तो बहुत अलग अलग तरीके के पिंक होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ लड़कियों को दिखाई देते हैं शेड्स। क्लियर? तो अगर कोई शेड वहां पे बना है तो हम कैसे कहेंगे दैट इट इज अ लाइटर पिंक, इट इज अ डार्कर पिंक, इट इज अ पीच पिंक, इट इज अ मजेंटा पिंक, इट इज अ बेबी पिंक, इट इज अ फलाना पिंक, इट इज अ डिमका पिंक। कौन सा पिंक? क्लियर? तो यहां पे अगर हम एक चीज देखें, इफ द सॉल्यूशन इज हैविंग pH 1.9, if the solution is having pH 2.1, then both of them will show the color pink. अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका pH है 7.05, तो वो तो कलर ग्रीन ही दिखाएगा। क्लियर? तो वहां पे हम नहीं कर सकते। और लिटमस की तो बात ही छोड़ो, अगर वो यहाँ पे 6.7 6.8 होगा ना, तो भी वो कलर चेंज नहीं दिखाएगा, वो न्यूट्रली बोलेगा हमें। क्लियर? तो नियर टू चीज अगर हम देखते हैं तो वहां पे हम एग्जैक्टली कलर के हिसाब से, कलर ब्लाइंडनेस सभी इंसानों में होती है, तो अकॉर्डिंगली हम उतना जज नहीं कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। हम अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, यहां पे तो सिर्फ तुक्का ही लगाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और नियर टू 7। बट यहां पे तो थोड़ा नजदीक आते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी वैसा ही है कि कलर सॉल्यूशन का बना, कौन सा कलर, कौन सा पिंक, कौन सा ग्रीन। क्लियर? तो वहां पे अगर हम देखने जाए तो वहां पे दिक्कत ही दिक्कत है कि जहां पे लड़कियों को 10 कलर दिखते हैं, वहां पे लड़कों को एक ही दिखता है ना? कि हमारे लिए तो पिंक भी कभी कभार रेड जैसा हो जाता है कि डार्क पिंक है, मैजेंटा पिंक है, और सारा हम तो रेड में गिनते हैं। आधे लोग तो पिंक को भी रेड में गिनते हैं, रेड और पिंक में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे देखो तो ये पिंक से लिखा है कि रेड से लिखा है। रेड है तो कौन सा रेड है, डार्क है, फलाना रेड है, कौन सा रेड है। सो देयर इज ऑलवेज ए कलर में हमें बहुत ही दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो हम वहां पे हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएंगे दैट इज 2, 1.9, 2.1, 2.01, लेकिन इतनी एग्जैक्ट पीएच का हमें काम क्या है, प्रिसाइजली वैल्यू चाहिए क्यों कोई भी सॉल्यूशन की। देन पीएच हैज ए वेरी मोर वेल इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम कोई दवाई बनाना चाहते हैं तो उसमें तो पीएच, एसिडिटी, बेसिसिटी, उसमें तो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी ए चेंज ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए सिंगल डिजिट आफ्टर 2-3 पॉइंट्स। पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर? कि अगर 0.5 है तो उसमें 0.4 भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज वैल्यू फॉर मेकिंग सम ऑफ द मेडिसिन। तो उसमें वो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। वी नीड द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ एनी पीएच। हमारे टीथ में, टंग में, स्टमक में, ब्लड में पीएच का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इफ देयर इज ए स्लाइट 1-2 पॉइंट डिफरेंस आफ्टर पॉइंट इन आवर ब्लड, इन द पीएच ऑफ आवर ब्लड, तो हमें बुखार आ जाएगा, मजा नहीं आएगा, पूरा दिन ऊपर नीचे लगेगा। सो हमारा पूरा बॉडी पीएच में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, और अगर वेरिएशन हुआ है तो हमें एग्जैक्टली प्रिसाइजली पता होना चाहिए व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर बॉडी और पीएच ऑफ आवर ब्लड और पीएच ऑफ आवर माउथ और पीएच ऑफ आवर स्टमक। देन एंड देन वी विल बी एबल टू डू समथिंग। तो उसी के लिए हमारे पास है लास्ट थिंग, दैट इज पीएच मीटर। हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि हमें एग्जैक्ट मेजर करना है तो कहां से करना चाहिए। समटाइम्स द क्वेश्चंस ऑफ पीएच मीटर्स आर आस्क्ड इन सिंगल मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम पीएच मीटर यूज करते हैं। पीएच मीटर कैसे ढूंढता है बेटा? तो पीएच मीटर ढूंढता है अकॉर्डिंग टू द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इफ इट इज एसिडिक सॉल्यूशन, इफ इट इज ए एसिडिक सॉल्यूशन, then it will be having H3O+ hydronium ion. If it is a basic solution, then it will be having hydroxide ion, and the amount of ions present in the solution indicates the pH of the solution, कि उसमें
आयंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो आयंस तो प्रिसाइज होंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इट कैन शो द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन पीएच मीटर। लेकिन उसमें एक छोटा सा दिक्कत है, आफ्टर यूजिंग द पीएच मीटर फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑलवेज यू हैव टू रीसेट बिफोर यूजिंग इट अगेन। एक बार आपने पीएच मीटर यूज किया, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, वेरी गुड। नाउ यू वांट टू यूज द पीएच मीटर फॉर एनी अदर सॉल्यूशन, तो आपको फिर से पीएच मीटर रिसेट करना पड़ेगा। कैसे रिसेट करेंगे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट पीएच मीटर। कि लिटमस पेपर तो बहुत ही बकवास है, वो तो नजदीक नजदीक भी कहीं नहीं दिखाता। pH meter and universal indicator are not measuring the pH accurately, precisely, so we are using pH meter for the precise measurement. pH meter measures the amount of ions present in the solution and accordingly gives us the precise value of pH of any solution. तो लिटमस और pH पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे pH मेजर करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. व्हाट आर द इंडिकेटर्स? फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, लीचिन्स, चाइना रोज, टर्मरिक, लिटमस. So there are many natural indicators और इन नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जैक्ट अमाउंट और प्रिसाइज अमाउंट में मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो अलग अलग कलर देके हमें उसका कोई भी सॉल्यूशन का. तो अगर हमें कोई प्रिसाइजली बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है देन वी विल यूज पीएच मीटर, बट इन अवर लेबोरेटरीज जस्ट हमें चेक करना है देन वी कैन यूज पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. देन वी कैन यूज पीएच मीटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच? कि अभी हमने मेजर करना तो सीख लिया, कैसे मेजर करते हैं वो भी हमें समझ में आ गया, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ? तो उसके लिए अगर आपको ये चीज समझनी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, उसके लिए आपको उसके पहले एक टॉपिक के पहले एक पूरा स्ट्रिप दिया है. अभी हमने जैसे बोला था ना फेयर एंड लवली वाला स्ट्रिप आता है, स्वेट दिखाता है, उसी तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक ऐसा स्ट्रिप दिया है इन विच डिफरेंट कलर्स इंडिकेटिंग डिफरेंट पीएच वैल्यूज आर शोन एंड द डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स आर शोन. फॉर एग्जांपल मिल्क का पीएच दिया है, ब्लड का पीएच दिया है, हमारे स्टमक का, माउथ का, व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ आवर बॉडी, ये सारी चीजें वहां पे दी गई है. सो यू शुड रिमेंबर दैट वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड्स पोजेसिंग द एसिडिटी, बेसिसिटी और एक्सेट्रा थिंग्स. कौन सा न्यूट्रल है, कितना पीएच कौन से कंपाउंड का होता है, कौन से सॉल्यूशन में कितना पीएच होता है, वो आपको याद रखना है. इस साल 110% मेरे हिसाब से 1 मार्क का क्वेश्चन उसमें से आएगा और आएगा ही आएगा. क्लियर? व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड पूछ लिया, व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क पूछ लिया, तो पूरा वो स्ट्रिप एक टेबल बना लो और टेबल में सारी वैल्यूज लिख लो. द पीएच ऑफ मिल्क, द पीएच ऑफ, देखो मिल्क का भी पीएच वेरी करता है, बट दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द मिल्क. अगर गाय आज दूध देती है तो उसका पीएच कुछ अलग होता है, कल दूध देगी तो भी उसका पीएच कुछ अलग रहता है. सो देयर कैन बी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मिल्क ऑफ ए सिंगल कप. तो ये तो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग के सारे पीएच अलग रहेंगे, बट देयर इज द एवरेज. हमारे ब्लड का पीएच भी वेरी करेगा, बट देयर इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ एनी ब्लड. तो उस हिसाब से आपको पूरा याद रखना है. मेक इट द टेबल एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ. तो ये सारे नोट्स अच्छे से बना लो, कंप्लीट करो. नोट्स आपको पहले से भेज दिए, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी आपको मिल गए. सो रीड इट आउट वेरी वेल. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.